اسلامی جمہوریہ پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی اور ترقی، اس کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک انٹروڈکشن آپ کو صرف انٹرو دیا کس کے بارے، آپ کے ملک کی اکنامک پالیسی کے بارے، اکنامک ڈیولپمنٹ کے بارے، کہ آپ کے ملک کی جو معاشی ترقی ہے، جو معاشی منصوبہ بندی ہے، اس کے اوپر ہم نے ابھی بات چیت کی، صرف آپ کو تعارف دیا تھا پچھلے لیکچر میں۔ آج ہم باقاعدہ جو پاکستان کی معاشی منصوبہ بندی ہے اور معاشی منصوبہ بندی کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر باقاعدہ بات کریں گے۔ تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اس میں بیٹا آپ کا فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کسی وجہ سے آؤٹ آف سٹی ہیں، آؤٹ آف کنٹری ہیں، کہیں چھٹیاں منانے گئے ہوئے ہیں، تو آپ کو یہ جو لیکچر ہے واٹس ایپ کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پہ بھی جب آپ چاہیں مل سکتا ہے، سن لیں گے، آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔ ابھی ہم جو پہلا پوائنٹ ہے معاشی منصوبہ بندی کی اہمیت، اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ ہے بیٹا فی کس آمدنی کو بڑھانا۔ معاشی منصوبہ بندی کا ایک اہم ترین مقصد ہوتا ہے کہ فی کس آمدنی کو بڑھایا جائے، اس میں مسلسل اضافہ کیا جائے۔ عوام کے معیار زندگی کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ فی کس آمدنی پر ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی ملک کی جو فی کس آمدنی ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے روز بروز، تو ملک جو ہے وہ معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اور اگر فی کس آمدنی میں کمی ہوتی جائے اور کمی واقع ہوتی رہے تو معاشی ترقی کی رفتار بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ متاثر ہوتی ہے اور نیچے کی طرف گراف آ جاتا ہے۔ چنانچہ معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے فی کس آمدنی کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں اگر ایک بندہ ہے نا، وہ گھر سے کمانے والا اکیلا ہے، تو اس بندے کی جب فی کس آمدنی بڑھے گی تو وہ جتنی آمدنی اس کی بڑھے گی اسی لحاظ سے اس کے گھر کا جو سرکٹ ہے، اس کے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ ویل مینج ہوں گے، اور زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ اس کے گھر کے جو معاملات ہیں، معاملات زندگی ہیں، وہ گزر سکیں گے۔ اسی طریقے اگر گھر میں پہلے ایک فرد کمانے والا تھا تو اب اگر دوسرا فرد کماتا ہے، بے شک وہ تھوڑا کمائے، اس سے بھی دیکھیں ان کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اوورآل ضرورت اس بات کی ہے کہ فی کس آمدنی میں اضافہ کیا جائے، کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی آمدنی میں اضافہ کرے، کہ وہ صرف ایک ہی کام پہ نہ رہے، ساتھ میں کچھ نہ کچھ کوئی چھوٹا موٹا کام سیکنڈ ٹائم یا تھوڑا سا شام کو کچھ ایسا ویسا سائیڈ بزنس کے طور پہ لازمی کرے، کہ جس سے اس کی پرسنل جو آمدنی ہے، فی کس آدمی کی آمدنی ہے، اس میں اضافہ ہو سکے۔ چونکہ جب اس چیز میں اضافہ ہوگا تو وہ آپ کے لیے کامیابی اور ترقی کا ضامن ہوگا۔ نمبر 2، قومی آمدنی میں اضافہ۔ نمبر 2، دوسری بات سب سے اہم ہے کہ فی کس آمدنی میں اضافے کے بعد اس کا کریڈٹ کہاں پہ جائے گا؟ قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ تو قومی آمدنی میں اضافے کے لیے معاشی منصوبہ بندی کا بنیادی مقصد ملک کے باشندوں کو خوشحال بنانا ہوتا ہے اور انہیں مطمئن اور پرسکون زندگی گزارنے کے قابل بنانا، اور انہیں اس بات کے مواقع بہم پہنچانا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قومی آمدنی میں یہ سارا کچھ ممکن کب ہوگا؟ جب آپ کی قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی فی کس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تاہم یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ملکی پیداوار میں اضافہ کر کے، ملکی پیداوار کو بڑھا کے قومی آمدنی میں اس حد تک اضافہ کر دیا جائے، اس حد تک اس کو بڑھا دیا جائے کہ قومی آمدنی میں اضافے کی جو شرح ہے وہ آبادی کی شرح سے زیادہ ہو جائے، آبادی کی شرح سے بڑھ جائے، کہ آپ کے ملک میں ایسا نہ ہو کہ لوگ زیادہ ہوں کھانے والے اور کھانا کم ہو۔ جب ایسا ہوگا تو ظاہری بات ہے معیشت کمزور ہوگی، لیکن جب ایسا ہوگا کہ کھانے والے کم ہیں اور آپ کے ملک میں خوراک کا بندوبست زیادہ کر رہے ہیں، آپ پیسے زیادہ کما رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ملک کی معیشت مضبوط ہوگی، اور جب ملک کی معیشت مضبوط ہوگی تو قوم خود بخود خوشحال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قومی آمدنی میں اضافے کے لیے آمدنی کے تمام ذرائع کو بروئے کار لا کر ان سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پیداواری ذرائع کی منصفانہ تقسیم کو اس سلسلے میں خصوصی اہمیت حاصل ہے، جو ملکی حالات کو پیش نظر رکھ کر کی جانی چاہیے، کہ ملک کے حالات کس طرح کے ہیں، ملک کے اندر زیادہ معیشت کس طریقے کے ساتھ آتی ہے، ملک میں زیادہ کہہ لیں کہ کمائی کس لحاظ سے ہوتی ہے۔ تو ہر ملک جو ہے وہ اپنے اپنے پہلو کو دیکھتے ہوئے، اپنے ملک کی معیشت کو دیکھتے ہوئے کہ انہیں کن چیزوں میں پروفٹ ہے، کن چیزوں میں زیادہ فائدہ ہے، تو وہ اس لحاظ سے اسی چیز کو لے کر آگے چلتے ہیں۔
नंबर 3, मुलाजमतों की फराहमी। हर हुकूमत चाहती है कि मुल्क में माशी तरक्की की राह में जो हायल रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए और माशी तरक्की की रफ्तार जो है वो काबिल सताइश रहे, लोग तारीफ़ करें और लोग जो है वो मुतमिन ज़िंदगी बसर कर सकें, गुजार सकें। चुनांचे मुल्क में काम करने के अहल अफराद को रोज़गार की फराहमी देना उसके बुनियादी मकासद और बुनियादी हुकूक में शामिल है। इसी के साथ साथ सिर्फ माशी मनसूबा बंदी के ज़रिए इस मकसद को हासिल किया जा सकता है और माशी मनसूबा बंदी के ज़रिए ही हासिल करने की कोशिश की जानी चाहिए। तरक्की पजीर ममालिक का सबसे बड़ा मसला जो होता है वो पढ़े लिखे अफराद, हुनरमंद अफराद, काम करने के अहल और काबिल बेरोज़गार अफराद को मुलाजमतों की फराहमी है। नंबर 1 तो ऐसे जो मुल्क होते हैं कि जो तरक्की याफ्ता नहीं, अभी तरक्की पजीर है, यानी कि जो अभी तरक्की कर रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा मसला होता है लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या कम हैं। नंबर 2, लोग बेरोज़गार हैं। नंबर 3, काम करने का कोई हुनर नहीं उनके पास, और हुनर आता है तो उनके पास काम नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं ये मुल्की माशी मनसूबा बंदी के तौर पे, कौमी माशी मनसूबा बंदी के तौर पे इन चीज़ों को बेहतरीन से बेहतरीन बना के गवर्नमेंट जब पेश करती है और लोग साथ में अपनी आवाम का और गवर्नमेंट का साथ देते हैं तो फिर इस मसले को बड़े आसान तरीके के साथ और बखूबी निभाया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है, जिससे क्या होगा कि आपके मुल्क की जो आमदन है वो और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो इसी के साथ साथ नंबर 4 पे हम चलते हैं, माशी खुद कफालत। माशी मनसूबा बंदी का एक अहम मकसद माशी खुद कफालत का हसूल है। इस मकसद को हासिल करने के लिए ज़रई शोबे में खराबियों को दूर किया जाता है, मंडियों के निज़ाम की इस्लाह की जाती है, काश्तकारों को उम्दा बीज, खाद और ज़रई मशीनरी की ख़रीदारी के लिए कर्ज की सहूलत दी जाती है। इसके अलावा आबपाशी के ज़राए को बेहतर से बेहतर बनाया जाता है और सीमो थूर की रोकथाम के लिए सीमो थूर क्या होता है आम बच्चों को नहीं पता होगा, वो जो ज़मीन के ऊपर आपने बाद दफ़ा देखा होगा कि वो नमक की तरह सफ़ेद सफ़ेद सी चीज़ें आपको मट्टी नज़र आ रही होती है, यूँ लगता है दूर से जैसे ये नमक है या चूना है, तो वो जो होता है वो नमक नहीं है, ना ही वो चूना है, वो कलर है। उससे क्या होता है, उस जगह पे फसल नहीं होती और फसल ना कह ले के होने के बराबर होती है, उस खेत में हो भी तो उस कलर को ख़त्म किया जाता है। इसी तरह सेम क्या होती है कि ज़ेरे ज़मीन से पानी निकलना और वो पानी जो है वो कड़वा हो, ज़मीन के नीचे पानी बहुत ऊपर फिर रहा हो, ये चीज़ें जो हैं आपकी फसल के लिए नुकसानदेह होती हैं। ऐसे इलाकों में जो फसल है वो नहीं होती। तो फिर सीमोथोर की रोकथाम के लिए जदीद तरीक़ाकार जो होता है वो काश्तकार की हौसला अफजाई करता है। उसमें ज़रई तहकीक व तालीम को फ़रोग़ देने की भी ज़रूरत है और ज़रई तहकीक व तालीम को फ़रोग़ देकर कौमी पैदावार में इजाफ़ा किया जा सकता है, जिससे मुल्क माशी एतबार से खुद कफ़ील बन जाता है। आपका मुल्क जो है वो ऑटोमेटिकली खुद कफ़ील बन जाएगा इन मामलात के ज़रिए से। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को साथ लेकर चलें कि काश्तकारों को अच्छे से अच्छा बीज दें, काश्तकारों के लिए अच्छी से अच्छी सहूलतें जो हैं वो प्रोवाइड करें और अच्छी मशीनरी जो है वो लोगों को दें। जब अच्छी मशीनरी लोगों को देंगे, अच्छी सहूलतें लोगों को देंगे, तो ये सारी वो चीज़ें होंगी कि जो आपको तरक्की के राह पर ले जाएंगी और तरक्की के रास्ते पर गामजन करेंगी। तो बच्चों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले तो आपके मुल्क की जो माशी खुद कफालत है उसके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जाए, कि जैसे ज़राअत के शोबे में देखा जाए तो किसानों को सबसे पहले अच्छा जो उम्दा बीज है वो सहूलतों पे दिया जाए और उनकी आसानी के साथ मिल सके, कम रेट पे मिल सके। नंबर 2 के जो खाद होती है जो उनको डालने की ज़रूरत होती है, खा वो सोना यूरिया हो या कोई और हो, किसान हो, तो जब मौका आता है तो वो खाद बेचने वाले लोग ब्लैक में बेचते हैं या उनको महंगी करके बेचते हैं। तो इनके लिए रोकथाम के लिए अमला तो मौजूद है, कवानीन तो मौजूद हैं, उनके ऊपर सख्ती से अमल करवाया जाए ताकि किसानों के लिए ये जो सहूलियात हैं
उनको आसानी के साथ मिल सकें। इसी तरीके कह लें कि जब उन लोगों की फसल पक के तैयार हो जाती है, बन के तैयार हो जाती है, तो उन लोगों ने उस चीज़ को जब मंडियों तक पहुंचाना होता है, तो मंडियों तक पहुंचाने के लिए उन लोगों को बड़े प्रॉब्लम होते हैं, उनको किराया बड़ा पड़ता है। और अगर वो घर में फसल बेचते हैं तो उससे जो ख़रीदार है वो उसको सही रेट नहीं लगाता, और अगर वो खुद लेके आना चाहता है तो उसको किराया काफ़ी पड़ता है, या कह लें कि उसके उस इलाके से अच्छी कोई सड़क नहीं आ रही। ये सारी वो वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर एक जो काश्तकार है उसके प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उसकी मुश्किलात में इजाफा होता है। इसी तरीके अगर कोई ज़िम्मेदार है, काश्तकार है, उसके पास ट्रैक्टर है या ट्राली है, लेकिन उसने बाकी औजार हल वगैरह बनाना चाहता है, या कह लें कि करा बनाना चाहता है, या लेवल लेना चाहता है, लेकिन अब उसके पास इतना बजट नहीं है, तो ऐसे मामलात में हुकूमत काफ़ी हद तक मामनत कर भी रही है, लेकिन इस हिस्से में बेहतरीन से बेहतरीन, ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ताकि जो एक किसान के मसाइल हैं वो सही तरीके से हल हो सकें। तो जब किसान के मसाइल सही तरीके के साथ हल होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ कह लें कि अपनी कौमी माइशत में इजाफा करके लोगों को दे सकेगा। इसी के साथ साथ नंबर 5 बात कर लें अदायगियों का तवाज़न। अदायगियों का तवाज़न से क्या मुराद है कि तरक्की पजीर ममालिक की जो अदायगियों का तवाज़न होता है वो अमूमन खसारे का शिकार रहता है बजाय उसके तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत, जिसकी वजह से बरामदात में कमी रहती है और दरामदात में इजाफा होता रहता है। अब मौजूदा दौर में ये थोड़ा सा, मैंने जैसे पहले बताया पिछले लेक्चर में, कि थोड़ा सा बेहतरी आई है, लेकिन अगर यही होता रहे कि आपकी मुल्क में बरामदात जो हैं उनमें कमी है, दरामदात में इजाफा है, इस खसारे को ख़त्म करके अदायगियों का तवाज़न दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है कि मुनासिब मनसूबा बंदी की जाए, माशी मनसूबा बंदी करके दरामदात और बरामदात में तवाज़ुन पैदा किया जाए, कि आपके बाहर से ममालिक से आने वाली चीज़ें जो हैं उन पर कम इन्हिसार करें, वो कम से कम मंगवाएं, और जो जिन चीज़ों के बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है उन प्रोडक्ट को, उन चीज़ों को बुलाया जाए, उन चीज़ों को दावत दी जाए और उन चीज़ों को ही मंगवाया जाए। लेकिन बाकी आप खुद कफ़ील हों, आप अपने मुल्क की प्रोडक्ट जो है उसको ज़्यादा तवज्जो दें, उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें, और ख़ुद जो है अपनी प्रोडक्ट वो बना के बाहर दूसरे ममालिक को बेचना शुरू करें। जब आप इस नहज पे पहुँचते हैं तो फिर आपके मुल्क की जो तरक्की है, जो माइशत है, वो पहले से ज़्यादा बेहतर होती है, और इसी चीज़ की अभी हमें माशरे में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम अदायगियों का तवाज़न बेहतर कर दें, जैसे एग्जांपल एक किसान की ही बात कर ली जाए, अगर वो देखे गन्ना लेके जाता है, वो जहाँ पे देखे आता है मिल वगैरह में, या वो जो लोकल उनके लोग ख़रीदने वाले गन्ना मौजूद होते हैं, जैसा कि कोई कंडा वगैरह है जहाँ पे उस गन्ने की फसल को ख़रीदा जाता है, तो वो नंबर 1 तो वहाँ उसके साथ नाप तोल में कमी होती है, वो बेचारा उस चीज़ को भी बर्दाश्त करता है। नंबर 2, फिर उसके बाद जो उसको पैसे हैं वो कह दिया जाता है कि जनाब आपको मिलेंगे, अगर आपने नकद बेचना है तो अगर 200 रुपये मन लेते हैं तो आपको 150 रुपया या 160 रुपये मिलेंगे मन के। किस वजह से? नकद। और नकद भी वो नहीं होते कि अभी गन्ना दिया साथ ही ये ले नकद पैसे, नकद भी 3-4 दिन के बाद आके ले जाएं। और एक दूसरा होता है कि जैसा कि शुगर मिल्स वगैरह मौजूद होती हैं, तो अगर मिलों में देने के 3-3 महीने 6-6 महीने उन बेचारों को पैसे नहीं मिलते, तो ये अदायगियों का तवाज़न दुरुस्त ना होने की वजह से फिर काश्तकारों का जो एतमाद है वो उठ जाता है उन इदारों के ऊपर से, उन शुगर मिलों के ऊपर से, जिसकी वजह से वो मजबूर होते हैं और वो प्राइवेट लोगों को ही गन्ना बेच देते हैं। ये एक मैं गन्ने की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल गंदम की फसल या कोई भी चीज़ हो तो उसमें भी ऐसा होता है, लेकिन गंदम के लिए हुकूमत ने एक अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई है कि लोगों से गंदम जो है वो गवर्नमेंट रेट पे और अच्छे रेट पे ले ली जाती है। ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसी तरह गन्ने को भी मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। तो काश्तकारों के लिए जितनी सहूलतें होंगी, क्योंकि आपके मुल्क का ज़्यादातर जो इन्हिसार है वो ज़राअत पर है, जितनी सहूलतें हम ज़राई किसान के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो उतना ही आपके मुल्क की माइशत जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होगी। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात की समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल हो, कोई बात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी और नासर हो। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इस यूट्यूब चैनल का भी इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।